In the previous chapter, you have studied the interior of the earth. You are already familiar with the world map. You know that continents cover 29% of the surface of the earth and the remainder is under oceanic water. तो as you know जो 29% जो अर्थ का सरफेस है that is covered with water और जो that is that is covered by the continents and the remainder is under मतलब maximum part is 70% near about it is under oceanic water. The positions of the continent in the ocean body as we see them in the map have not been the same in the past. तो आप जस्ट जब आप अर्लियर ज्योग्राफी आप स्टडी करते हैं तो कॉन्टिनेंटल थ्योरी ऑफ ड्रिफ्ट के बारे में आप पढ़ते हैं तो कॉन्टिनेंटल थ्योरी ऑफ ड्रिफ्ट शो करती है कि ऑल द कॉन्टिनेंट्स दे आर connected to each other and later on with the millions of years they get separated and जो depressions were caused और उन depressions में वाटर फिल्ड अप हो गया एंड दे कन्वर्टेड इनटू ओशियंस. तो जो पहले का जो पिक्चर थी पहले जो आप जस्ट अज्यूम करते कि अर्थ किस टाइप की होगी तो उससे ही आज का जो है वो दैट सिनेरियो इज़ वेरी डिफरेंट. Continents and the oceans have changed and are changing their positions. You may wonder as to how scientists they know about it. So look here, continental drift theory. This you have earlier studied also. Continental drift theory कहलाती है. Continents जो थे एक दूसरे से अलग हुए. Observe the shape of the coastline of the Atlantic Ocean. जो अटलांटिक ओशन है अगर आप उसकी जो कोस्ट लाइन है कोस्ट लाइन मतलब जो तटीय रेखा है उसको अगर आप स्टडी करें उसकी शेप को स्टडी करें तो यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द सिमेट्री ऑफ द कोस्ट लाइन ऑन आइदर साइड ऑफ द ओशन. जो उस महासागर के जो सागर के जो साइड में जो दूसरे कॉन्टिनेंटल मास है उसकी जो कोस्टल लाइन है उसको वो उसके जैसी ही दिखती है सिमेट्री है उनके बीच में. No wonder when many scientists thought of this similarity and considered the possibility of two Americas, Europe and Africa. तो just अगर आप एक जिग सॉ पजल की तरह अगर कॉन्टिनेंट्स को एक दूसरे में फिट करें तो वो एक दूसरे में पीसेस फिट हो जाते हैं. तो फ्रॉम द नोन रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइंस it was Abraham Ortelis and a Dutch map maker who first proposed such a possibility as early as 1596. तो 1596 में अब्राहम ऑर्टेलिस जो पर्सन था डच मैप मेकर था उसने इस संभावना को व्यक्त किया. Antonio Pellegrini drew a map showing the three continents together. Uh, However, it was Alfred Wegener, a German meteorologist, who put forth a comprehensive argument in the form of continental drift theory. 1912 में ये theory put forward की गई. This was regarding the distribution of oceans in the continents. According to Wegener, all the continents they formed a single continental mass and mega oceans surrounded the same. तो he is saying that जो सारे continents है अगर उनको एक साथ जोड़ दिया जाता है वो एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मास फॉर्म करते हैं. The supercontinent was named Pangaea, which means all Earth. The mega oceans were called Panthalassa, meaning all water. Thalassa means water, and Gaea that is Earth. Okay, he argued that around 200 million years ago, the supercontinent Pangaea it began to split. Pangaea first broke into two large continental masses as Laurasia and Gondwana. Two mass of islands में वो distribute हुआ Laurasia and Gondwana land forming the northern and the southern components respectively. Subsequently, Laurasia and Gondwana continued to break into very smaller continent that exist today. Just you see कि जो गोंडवाना आइलैंड्स हैं ये जो उससे फॉर्म हुए एशिया अफ्रीका के जो कई मास लैंड्स हैं they are formed by these Gondwana lands. A variety of evidence was
offered in support of the continental drift theory. कुछ कुछ एविडेंसेस दिए गए हैं, कुछ सबूत दिए गए हैं कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एग्जिस्ट करती है. द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स. The shorelines of Africa and South America facing each other have a remarkable and unmistakable match. तो इनकी जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका की जो शोर लाइन है, जो तटीय रेखा है, वो एक मैच जब वो अगर उनको जोड़ा जाए, उनको अगर धीरे धीरे पास लाया जाए तो वो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं. इट मे बी नोटेड दैट अ मैप produced using a computer program to find the best fit of the Atlantic margin was presented by Bullard in 1964. 1964 में बुलार्ड ने उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम यूज़ करके उनमें शो किया ये कि इट प्रूव टू बी क्वाइट परफेक्ट. द मैच वाज ट्राइड एट 1000 fathom line instead of the present shoreline. तो 1000 fathom line जो डेप्थ को नापने का वे है, और उसमें भी उसको उन्होंने जब उसको मेज़र किया तो he finds that it fits into each other. Rocks of same age across the oceans. The radiometric dating method developed in the recent period have facilitated correlating the rock formation from different continents across the vast ocean. तो अब यहाँ oceans में जो rocks जो रॉक्स जो ओशन के जो बेड्स हैं या साइड में जो शोर लाइन्स हैं उनमें जो रॉक्स हैं उनको अगर स्टडी किया जाए तो फिर क्या निष्कर्ष निकलेंगे, इसके बारे में पढ़ा गया. द बेल्ट ऑफ एंशियंट रॉक्स ऑफ 2000 मिलियन ईयर्स फ्रॉम ब्राज़ील कोस्ट. ब्राज़ील की जो कोस्ट जो लाइन है वहाँ पर जो रॉक्स हैं वो जब उसकी जो पूरी बेल्ट है उसको 2000 मिलियन ईयर्स पहले कैसी होगी उसको मैच किया गया है वेस्टर्न अफ्रीका से. ब्राज़ील की रॉक बेल्ट को मैच किया गया है वेस्टर्न अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका की. तो द अर्लीस्ट मैरिन डिपॉजिट्स अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका आर ऑफ जुरासिक एज. जुरासिक एज आप पढ़ते हैं हिस्ट्री में कि एज वाइज आप पढ़ते हैं कि हिस्ट्री किस किस पीरियड में डिवाइडेड है. तो यहाँ पर साउथ अमेरिका और अफ्रीका के जो कोस्ट लाइन है दे आर ऑफ सेम टाइप. दिस सजेस्ट दैट द ओशन डिडंट एग्जिस्ट प्रायर टू द टाइम. तो ये कह रहा है कि मतलब जुरासिक पीरियड के पहले ओशियन जो थे दे आर नॉट एग्जिस्टिंग एट ऑल. तो एक वन मोर वर्ड इज देयर टिल it is the sedimentary rocks formed out of the deposits of glaciers. ग्लेशियर्स जो होते हैं उनके जो डिपॉजिट्स होते हैं जो ग्लेशियर का जो मास ऑफ ग्लेशियर्स का जो है तो उसमें जो रॉक फॉर्मेशन होती है उसके डिपॉजिट से, तो उसको जब स्टडी किया गया है और उसको टिलेट बोला गया है. तो द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सैंडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट in 6 different land masses of the southern hemisphere. तो इंडिया जो एक गोंडवाना आइलैंड्स का एक गोंडवाना लैंड मास का एक पार्ट है, और एट द बेस द सिस्टम हैज थिक टिलेट इंडिकेटिंग एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग ग्लेशिएशन. यहाँ पर ये शो करा कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ग्लेशियर पीरियड था, मतलब ice period था. Counterpart of this succession are found in Africa, Falkland Islands, Madagascar, Antarctica and Australia. तो यहाँ जो सदर्न जो हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर के जो लैंड मासेस है तो रिजेंबल कर रहे हैं. हाउएवर द रिजेंबलेंस ऑफ द गोंडवाना टाइप सेंडिमेंट जो ग्लेशियर्स के जो वाटर जो वहाँ से निकलता है, ग्लेशियर जो अपने साथ में लैंड मास को लेके आते हैं और उसको डिपॉजिट कर देते हैं बेसल रीजन में, तो वहाँ उनको स्टडी किया गया है, सेंडिमेंट्स को स्टडी किया गया है. दे क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड दैट दीज लैंड मासेस हैड रिमार्केबली सिमिलर हिस्ट्री. उनकी मतलब ये शो करता है कि जो लैंड मास है उनकी एक जैसी हिस्ट्री है. द ग्लेशियर टिलिटी provides unambiguous
evidence of paleoclimate and also of drifting of continents. तो ये ग्लेशियल जो टिलिट होता है, जो मास डिपोजिशन होता है, मास डिपोजिशन होता है, तो दैट प्रोवाइड्स एन एविडेंस, वो एक सबूत दे रहे हैं कि दैट इज ऑफ पैलियोलिथ क्लाइमेट एंड आल्सो ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, की कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। चलिए, तो नेक्स्ट है आप प्लेसर डिपॉजिट्स पढ़े। द ऑकरेंस ऑफ रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड इन द घाना कोस्ट। अफ्रीका में जो घाना जो कोस्टल एरिया है, वहाँ पर क्या है कि घाना में गोल्ड माइंस आर आल्सो देयर। तो and the absolute absence of source rocks in the region is an amazing fact। तो घाना में आप गोल्ड माइन है अफ्रीका में, तो वहाँ पर ये शो कर रहा है कि वहाँ पर क्या है कि एब्सेंस ऑफ सोर्स रॉक, जो जहाँ से रॉक्स जैसे जहाँ से अराइज होती हैं, वो नहीं है वहाँ पर। ये एक बड़ा हैरानी वाला तथ्य है। द गोल्ड बियरिंग वेन्स आर इन द ब्राज़ील एंड इट इज़ ऑब्वियस दैट द गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ द घाना आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राज़ील प्लेट्यू व्हेन द टू कॉन्टिनेंट ले साइड बाय साइड। तो ये कह रहा है कि जो ब्राज़ील के जो पठार जो क्षेत्र थे, जब दोनों कॉन्टिनेंट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, तो मे बी जो गोल्ड माइंस हैं वो ब्राज़ील प्लेट्यू से राइज हुई होंगे, उसके जो वहाँ से वो डिपॉजिट्स मिले होंगे, और वो इट कम्स इनटू द अफ्रीका पार्ट। ओके, तो that is placer deposits, distribution of fossils when identical species of plants and animals adapted to living on land or in fresh water. They are found on either side of the marine barriers. A problem arises regarding accounting for such distribution. When identical species of plants and animals, एक जैसे plants और animals, they adapted to लिविंग ऑन लैंड, अगर वो एक ज़मीन पर अगर वो रहने के लिए अडेप्टेड हो जाते हैं, तो वो और या फ्रेश वाटर में रहने के लिए दे आर अडेप्टेड, दे आर फाउंड ऑन आइदर साइड ऑफ द मैरीन बैरियर्स, बैरियर्स होते हैं रुकावट, तो उसके एक दोनों साइड में अगर वो मिलते हैं, अ प्रॉब्लम अराइजेज रिगार्डिंग अकाउंटिंग फॉर सच डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए कह रहा है कि अगर जो कि लैंड में रहने वाले एनिमल्स हैं या फ्रेश वाटर में जो रहने वाले एनिमल्स हैं, अगर वो बीच में एक बैरियर है, जो सॉल्ट वाटर इज प्रेजेंट, और वो ओशन वाटर इज प्रेजेंट, एंड ऑन बोथ साइड ऑफ दैट मैरीन बैरियर different type of plants and animals are found. So why how you can account for such things? The observations that lemurs occur in India, लेमूर्स जो है इंडिया में भी होते हैं, मेडागास्कर में भी होते हैं, अफ्रीका में भी होते हैं। तो इससे ये शो करता है दैट दे लेड सम टू कंसिडर अ कंटिन्यूअस लैंड मास लेमोरिया। एक लैंड मास को ही नाम दे दिया गया लेमोरिया, लिंकिंग दीज थ्री लैंड मासेस की, इनमें तीनों जो लैंड मासेस है वो लिंक्ड है। Mesosaurus was a small reptile adapted to shallowish brackish water। तो ये एक एनिमल है, छोटा सा रेप्टाइल है, मतलब रेंगने वाला जीव है ये, शैलो उथले पानी में होता है ये। द स्केल्टन ऑफ दीज आर फाउंड ओनली इन टू लोकेलिटीज। तो ये दो जगह ही मिला है, इसके फॉसिल्स मिले हैं, रिमेन फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, द सदर्न कैप प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड इरावर फॉर्मेशन ऑफ ब्राज़ील। तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि दोनों लोकेलिटीज़ जो थी, दे आर 4800 किलोमीटर अपार्ट, बीच में एक ओशन है, और एक दोनों बॉडीज जो है लैंड मास, दे आर डिस्टेंट बाय दिस मच, 5000 किलोमीटर दूर है, फिर भी एक जैसे वो एनिमल्स के फॉसिल्स पाए गए हैं। तो इट मीन्स कि हम बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो दे वर कनेक्टेड। Forces for drifting, what were the forces they are reasonable for this drifting? तो ये हम पढ़ेंगे। Wagner suggested that the movement possible for the drifting of the continents was caused by pole fleeing force and tidal force. The polar fleeing force relates to the rotation of the earth. This force is account this comes because of the rotation of the earth.
Earth rotates on its own axis. You are aware of the fact that the Earth is not a perfect square. Earth एक स्फीयर नहीं है, तो पूरा गोला नहीं है, वो बल्जिंग एट द इक्वेटर है थोड़ा सा, इक्वेटर में वो थोड़ी सी फूली हुई है, और जो और जो स्लाइटली जो पोल्स पर ये टेपरिंग है, मतलब लाइक अ रग्बी बॉल. ओके, दिस बल्ज इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. ये बल्ज वाइट अराइजेस ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. The second force that was suggested by the Wagner, the tidal force, is due to the attraction of the moon and the sun that develops tides in the oceanic water. आपने ज्वार भाटा का नाम सुना होगा. जब जो मून और अर्थ के बीच में एक जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो दैट कोजेज द दीज टाइड्स. ज्वार जो वाटर है, जो सी वाटर है, वो क्या होता है कि वो अराइज हो जाता है, वो तटीय किनारों पे भी आ जाता है, थोड़ा सा उसका लेवल ऑफ सी वाटर राइजेस, उसको बोलते हैं हाई टाइड. और जब वो धीरे धीरे डिसेंड हो जाता है, तो दैट इज नोन एज लो टाइड. हाई टाइड एंड लो टाइड, दैट इज कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, उसको बोलते हैं. और यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि दैट टाइड्स आर कॉज्ड इन ओशनिक वाटर. ओके, तो वैगन he believed that these forces would become effective when applied over many millions years. So most of the scholars consider these forces to be totally inadequate. वो नहीं मानते कि इन forces को आप account कर सकेंगे. किसके लिए? For the drifting theory. Post-drift studies. It is interesting to note that the continental drift, most of the evidences was collected from the continental areas in the form of distribution of flora and fauna or deposits like Tility. तो अब ये कह रहा है कि a number of discoveries during the post-World War II period added new information to the geological literature, particularly the information collected from the oceanic floor mapping provides new dimensions for the study of distribution of oceans and continents. तो यहाँ पर अगर जब आप फ्लोर मैपिंग कंसेप्ट को पढ़ते हैं, मैपिंग जो, तो उससे आपको नई नई चीज़ें पता चलती हैं, नए नए कि कैसे ओशियंस का डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. So these were the post-drift studies. The next is convectional current theory. Arthur Holmes in 1930 discussed the possibility of convection currents operating in the mantle portion. कन्वेक्शन एक फॉर्म है, एक जैसे रेडिएशंस होती हैं, वो कैसे कंडक्ट होती हैं, तो दैट इज कन्वेक्शन इज आल्सो अ वे ऑफ दैट. तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे द पॉसिबिलिटी ऑफ convection currents operating in the mantle portion. Crust, mantle and then core. तो mantle portion में जो convection currents हैं, these currents are generated due to the radioactive elements causing thermal differences in the mantle portion. तो यहाँ पर क्या होता है, जो mantle portion में जो radioactive elements होते हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, तो वो सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, एक थर्मल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं. मतलब थर्माइज हीट,